In this module, we will discuss the simple lipids and their some properties. We have already discussed in detail the classification of the lipids. Esters of fatty acids with various alcohols are known as simple lipids. These contains fats and oils and waxes, and oil और waxes में हमने differentiate किया था initially कि जो fats oily उसमें form में है, these are जो सॉलिड फॉर्म में है, दीज आर ऑल्सो फैट्स, एंड वो उसी को अगर उसके अंदर उसका जो है ना मेल्टिंग टेम्परेचर लो होगा तो ऑयली फॉर्म में होंगे, एंड द अदर टाइप ऑफ सिंपल लिपिड्स आर दी वैक्सेस. फैट्स, दीज आर दी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल. ऑयल्स आर फैट्स इन दी लिक्विड स्टेट, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर ऑयल्स जो हैं वो फैट्स जो हैं लिक्विड स्टेट्स में होंगे तो दीज आर नोन एज फैट्स. So the esters of fatty acids with the glycerols are known as fats, whereas waxes are the esters of fatty acids with higher molecular weight monohydric alcohols having only one OH group. We will discuss waxes in detail in the next few modules. In this module, we will only discuss the fats which are the esters of fatty acids with the glycerol. Glycerol को हमने पहले डिटेल में स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया उसका, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लिसरॉल एंड आल्सो द डिफरेंट टेस्ट. वन टेस्ट फॉर द which is acrolein test, which is required for the identification of the glycerol. Triacylglycerol or tags, or the simplest lipid constructed from the fatty acids are the triacylglycerol. हमने शुरू में भी देखा था कि ग्लिसरॉल के ऊपर 3 कार्बन एटम्स हैं. अगर तीनों के ऊपर एक एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड लग जाए तो दिस इज फॉर्म द triacylglycerol. These are also referred to as triglycerides, जो बॉडी में हम रूटीन में लिपिड प्रोफाइल करते हैं, या जो है बॉडी में हम देखते हैं जब फैट का कंटेंट ह्यूमन बॉडी के प्लाज्मा में, उसके ब्लड में, तो वहाँ हम ट्राईएसाइलग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को मेजर करते हैं. और दीज आर आल्सो नोन एज फैट्स और न्यूट्रल फैट्स और storage lipids. So these are the different names of the triacylglycerols or the tags. Triacylglycerols are composed of 3 fatty acids in ester linkage with a single glycerol. ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर ग्लिसरॉल को हमने डिफाइन किया है 1 2 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 हाइड्रोक्सिल है, 3 OH, 3 हाइड्रोजन है. तीनों हाइड्रोक्सिल के साथ अगर जो है ना वाटर निकल जाए और उसके साथ हाइड्रोकार्बन चेन अटैच हो जाए तो दिस विल फॉर्म द triacylglycerol or the tags. This is the diagram which defines the synthesis of tags or triglycerides or the triacylglycerol from the fatty acid and glycerol. This is the molecule of glycerol. We have already seen it that it is having 3 hydroxyl group, and these are the fatty acid moieties of different chain length. We have already discussed that इसके अंदर यहाँ एक methyl end है, while this is the carboxyl end. This carboxyl end is attached with this carbon atom of these 1 2 or 3 carbon atoms of the glycerol molecule with the removal of 3 water. एक हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगा, एक OH निकल जाएगा, तो वाटर निकलने से ये इसके अंदर एस्टर लिंकेज बन जाएगी. दिस इज द एस्टर लिंकेज बिटवीन द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड दीज 3 1 2 and 3 different or similar. We will discuss in the next few slides कि किस किस तरह के जो है वो फैटी एसिड्स अटैच हो सकते हैं. So this is the general structure of the triacylglycerol or tags or triglycerides. This is the other diagrammatic presentation of the ester linkage. We can see here that this one is the ester linkage between this carbon atom number 1 and this carboxyl group
of this long chain fatty acid. We can see here that these three fatty acids are having different chain length. So this is a molecule or fat molecule or triacylglycerol or the TAG. Structure of triacylglycerols. The three fatty acids esterified to the glycerol molecule are usually not of the same type. Usually ये एक type के नहीं होते, ये different भी हो सकते हैं लेकिन same भी हो सकते हैं. We will discuss in the next few slides. The fatty acid on the carbon atom number 1 is typically saturated. As a generalization, we can say that carbon atom number 1 पे जो है वो fatty acid that is usually typically saturated, whereas that on the carbon atom number 2 is fatty acid attached to the carbon atom number 2 is unsaturated, whereas the carbon atom number 3 of glycerol is having either saturated or the unsaturated type of fatty acid. So this is the again the structure of the triacylglycerol. हमने पिछली स्लाइड में डिफाइन किया है कि अगर प्रोटीन में यूजुअली कार्बन एटम नंबर 1 के ऊपर जो दिस इज द कार्बन एटम नंबर 1 इसके ऊपर फुली सैचुरेटेड जो है वो अटैच होता है. सेकंड के ऊपर दिस इज कार्बन एटम नंबर सेकंड दिस इज इसके ऊपर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अटैच है और थर्ड कार्बन पे आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं. तो अगर हम इसका जो है ना इसका नॉमेनक्लेचर देखें तो वी कैन सी से इट स्टीरॉयल, 2 लिनोल ऑयल, 3 palmitoyl glycerol. 1 स्टीरॉयल मीन कि कार्बन एटम नंबर 1 पे स्टेरिक एसिड है. 2 लिनोल मीन्स कि सेकंड कार्बन एटम पे लिनोलिक एसिड है, while 3 palmitoyl means कि third carbon atom of the glycerol is having a structure attached of the palmitic acid. Simple triglycerides. Fatty acids connected to glycerol are of the same type. अगर तीनों एक ही टाइप के होंगे तो दिस इज कॉल्ड एज ट्राईपामिटिन. अगर तीनों पामिटिक एसिड है दिस इज नोन एज ट्राईपामिटिन. और द मिक्स्ड ट्राइसाइक्लिसराइड फैटी एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं तो उसको फॉर एग्जांपल स्टीरियोडायोलिन एंड पामिटोओलियोस्टीरीन. स्टीरियोडायोलिन क्या है कि एक स्टेरिक एसिड है और दूसरा जो है उसके ऊपर लिनोलिक एसिड है. इसी तरह इसको पामिटोओलियोस्टीरीन पे तीनों डिफरेंट है. एक पामिटिक एसिड है, सेकंड कार्बन पे ओलिक एसिड है और थर्ड पे स्टेरिक एसिड है. तो these fatty acids or these triglycerides may be simpler or having the same type of the तीनों एक ही तरह के तीनों पामिटिक एसिड भी अटैच हो सकते हैं और तीनों डिफरेंट टाइप्स के जो है इस पे फैटी एसिड भी अटैच हो सकते हैं. दिस इज अगेन द स्ट्रक्चर विच इज दिस इज द ट्राईपामिटिक स्ट्रक्चर. इस पे 1, 2 और 3 तीनों पे पामिटिक एसिड अटैच्ड है, जबकि दिस सेकंड इज हैविंग फर्स्ट पे स्टेरिक एसिड है एंड 2 और 3 दोनों पे डायोलिन विच इज 2 डाइमीन 2 एंड लिनिक एसिड. तो सेकंड एंड थर्ड पे लिनोलिक एसिड अटैच है. सिमिलरली अगर हम इसको मिक्स ट्राइग्लिसराइड थर्ड स्ट्रक्चर को देखें तो इस पे फर्स्ट पे के ऊपर पामिटिक एसिड अटैच है, while in the second is the folic acid and third is the steric acid. So this is the different types of hydrocarbon chains or the fatty acid chain which are attached to the glycerol for the formation of triacylglycerol. The main difference between fats and oils is for oil being liquid at room temperature and fats are solids. ये हमने डिफाइन किया था कि मेल्टिंग टेम्परेचर जो है पॉइंट है वो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट जो है ना वो दो चीज़ें डिफाइन करती हैं. वन इज़ द सैचुरेशन एंड द अदर इज़ द चेन लेंथ. जितनी चेन लेंथ ज़्यादा होगी उतना वो हार्ड होगा, जितनी चेन लेंथ कम होगी उतना वो ऑयली होगा. इसी तरह हमने उसमें बटर में भी डिफाइन किया था. इसी तरह हम इसको नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में भी इसी तरह देखेंगे. हम इसको इसी तरह हमने उसको डिफाइन किया था इनिशियली उसकी प्रॉपर्टीज़ में कि जितने उसके अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे उतना वो ऑयली फॉर्म में होगा. दिस इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्जर
percentage of unsaturated fatty acids in oil than fats that has mostly saturated fatty acids. This is the structure or the diagram which we have already discussed कि अगर ये saturated fatty acids हैं तो ये straight chain है और ये साथ साथ जो है ना tightly पैक हो जाते हैं. So this is forming a solid structure और ये बटर अगर हम कह लें तो अगर इन्हीं में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमने डिफाइन किया था वहाँ किंग्स आ जाती हैं. किंग्स की वजह से ये पैकिंग दूर हो जाती है और ये लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं. Triacyl glycerol containing saturated fatty acids are solid at room temperature such as butter, whereas triacyl glycerol or tags containing unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. For example, olive oil. Olive oil जो है वो रूम टेम्परेचर पे ऑयली फॉर्म में है क्योंकि इसके अंदर ओलिक एसिड है. ओलिक एसिड को हमने डिटेल में डिफाइन किया था कि इसमें 18 कार्बन कंपाउंड है and it is having one double bond at 9th position. So this is a unsaturated fatty acids. जबकि बटर में हमने डिफाइन किया था इनिशियली कि उसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है जिसके अंदर सिर्फ 4 कार्बन कंपाउंड है और वो एक तो उसकी चेन लेंथ थोड़ी है. सेकेंडली इसके अंदर बाकी जो बटर के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं दीज आर स्टेरिक एसिड, palmitic एसिड एंड ल्यूरिक एसिड and the butyric acid. तो butyric acid की चेन लेंथ कम है, बाकियों की चेन लेंथ ज़्यादा है, लेकिन these are all steric acid and palmitic acid and uric acid all are unsaturated fatty acids. तो unsaturation की वजह से भी ये बटर जो है वो जो है ना सेमी सॉलिड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म पे होता है इन रूम टेम्परेचर. So this is the brief description of triacyl glycerols.